Everyone, this is a problem from statistical mechanics. Consider a large number of n localized particle in an external magnetic field H bar. Each particle has spin half. Find the number of state accessible to the system as a function of ms. Means they are trying to say find the number of distribution as a function of ms. And what is ms is? Ms is the z component of the total spin of the system. It is a z component fine of the total spin, which is directed along the direction of magnetic field, this magnetic field. Fine. So then say determine the value of ms for which the number of state is maximum. Fine. When means when the states number of distribution will be maximum, then what will be the value of ms. Fine. So now they have said each have spin half. Fine. So that means spin half means there are two particles, means particles will have two orientation. Fine. One is half, another is minus half. Fine. Then suppose particle or number of particle with half spin, let's say it is equal to n1, and number of particle with minus half spin, let it be n2. This n spin is directed along magnetic field H vector, and these are away or opposite to the direction of magnetic field. Fine. So टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा अगर n1 प्लस n2 करेंगे, सपोज लेट से इट इक्वल टू n, तो इसको हम 1 पकड़ लेते हैं। n1 पार्टिकल का कितना स्पिन है, हाफ स्पिन, प्लस n2 पार्टिकल का कितना स्पिन है, माइनस हाफ स्पिन। फाइन. These two, if we add these two, what will be giving us? It will be giving us z component of total spin of the system directed along the magnetic field. So that is given by ms. Fine. So let this be, so let us modify this, n1 minus n2 equal to 2 ms. Fine. So this is 2. Now if we add 1 plus 2, what will be giving us? n1 equal to 1 by 2, right, n plus 2 ms, or we can write it n1 equal to n by 2 plus ms. Similarly n2 will be n by 2 minus ms. फाइन. तो ये है हमारा. नाउ हमें क्या बताया गया है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट एसेसिबल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? सो नंबर ऑफ स्टेट accessible और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है, हमारे पास क्या है, दो बॉक्स है, वन विथ हाफ पार्टिकल, वन स्पिन हाफ, वन विथ माइनस हाफ. तो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? हाउ मेनी पार्टिकल वी हैव? वी हैव n number of particle, right? nc
and spin with half or and with minus half, it will be suppose n1, और इसको ये भी दे सकता है nc n2, anyone will give you the number of distribution. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल, राइट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल और n माइनस n1 मतलब कितना, आधा है, मतलब सॉरी मतलब रेस्ट इज n2, सो n2 पार्टिकल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल. सो दे सेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट एसेसिबल टू द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ ms. तो हमें ms में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, वी हैव टू रिप्लेस इट हियर. फाइन. तो ये हो गया हमारा n माइनस सॉरी n/2 माइनस प्लस ms फैक्टोरियल and n/2 minus ms factorial. So this is our number of state accessible. Fine. Now the next question is determine the value of ms for which the number of state is maximum. Fine. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें वैल्यू ऑफ ms निकालना है व्हेन ओमेगा इज मैक्सिमम. फाइन. तो ओमेगा का वैल्यू क्या था, n फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं n1 फैक्टोरियल, इसको भी लिखते हैं n1, इन टर्म्स ऑफ n1 ही हम लिखते हैं. फाइन. तो इसको मैक्सिमम करेंगे तो क्या होगा, पहले हम इसके फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको लॉग कर देते हैं बोथ साइड. लॉग अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग n फैक्टोरियल माइनस लॉग n1 फैक्टोरियल माइनस लॉग n माइनस n1 फैक्टोरियल. फाइन. तो स्टेडलिंग फार्मूला अगर लगाएंगे, स्टेडलिंग अप्रोक्सीमेशन या फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, लॉग ओमेगा n लॉग n, राइट, माइनस फिर n1 सामने आएगा और लॉग n1 रह जाएगा, फैक्टोरियल मूव हो जाएगा, माइनस दिस विल बी n माइनस n1 पहले आएगा लॉग का पहले, फिर लॉग n माइनस n1. दैट्स व्हाट इज गिविंग बाय स्टेडलिंग फार्मूला, राइट. अभी हम क्या करेंगे, वी विल से दैट ये मैक्सिमम जब होगा ना तो हम इसको मैक्सिमम करते हैं इन टर्म्स ऑफ n1 हम करते हैं, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा. तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस टर्म विल बी ज़ीरो. फाइन. ये कंस्टेंट है n, सो इट विल बी ज़ीरो. अभी हियर आर टू टर्म्स, हाँ, वन इज़ a वन इज़ b सपोज. तो हम इस पहले इसको अगर हम करते हैं तो कितना क्या निकलेगा हमारा, log ऑफ n1 विल बी 1/n1 डिफ्रेंशिएशन, तो n1 1 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट होगा फिर हमें रखना पड़ेगा n1 को, सॉरी log n1 को. तो log 1 को रखेंगे तो n1 से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इट विल बी 1, सो log n1. नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा, माइनस log n माइनस n1, बिकॉज पहले वाला टर्म अगर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस विल बी 1 ओनली, ज़ीरो मतलब नहीं रहेगा, राइट. तो नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा. तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आएगा, माइनस, सो दिस विल बी प्लस. ठीक है. फाइन. तो ये हमारा बच गया फाइनली. अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n1 बाई n माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. फाइन. इक्वल टू ज़ीरो ही है, सो वी कैन राइट इन एनीथिंग. सो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ n1 n माइनस n1, इसको हम log 1 लिख सकते हैं, राइट. log 1 क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो को हम log 1 लिख सकते हैं. तो फाइनली हमारा क्या हो गया, n1 को हम लिख सकते हैं n इक्वल टू n1 n माइनस n1. तो ये हो जाएगा आपका n1 इक्वल टू 1/2 ऑफ n. इसका मतलब क्या था हमारा जो था ms का वैल्यू क्या था हमारा, n1 पार्टिकल हैविंग स्पिन हाफ माइनस सॉरी प्लस n2 पार्टिकल हैविंग माइनस हाफ. ठीक है. अगर n1 का वैल्यू n/2 हो जाए तो n2 का वैल्यू क्या होगा, n/2 ही होगा, बिकॉज n2 इक्वल टू n माइनस n1, सो दैट विल बी n/2 ओनली. ठीक है. तो दोनों अगर ये हो जाए तो ms का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. फाइन. मतलब हमारा नेट
स्पिन जो होगा और जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एच, जो एम एस होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो अगर जब इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो ही होगा। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच।